Okay. In previous class, we have seen angular momentum. This was the homework given. And angular momentum is about any point is rp sine theta. है ना? So what will be the answer of this question? Yes, have you done, Sanskriti? What will be answer? When the projectile is at highest point, यहाँ पर है, it will be moving like this. What will be its velocity at highest point? If initial velocity is u, angle is theta, what will be the velocity at highest point? Yes, can you hear me? Sanskriti, Yes, sir. can you hear me? Yes, sir. Okay. तो velocity highest point पे कितनी होगी? 0. u cos theta projectile में पढ़ा हम लोगों ने. हाँ, Horizontal sorry. component. Horizontal component remains. So we have the velocity and mass is m. Mass you can take m. M is the mass. ठीक है. तो यहाँ से चाहिए हमें. We need the angular momentum from point of projection. So how to get that? Angular momentum from point of projection. बोलो. So we have to, what will be the final answer? यहाँ से angular momentum चाहिए इस point से. तो ये r होगा इतना. But if we extend this line, draw the perpendicular here. This will be r perpendicular, which will be equal to h, maximum height. ठीक है. Maximum height के terms में easily निकाल सकते हैं. There is a line of motion of particle. This will be r perpendicular, which will be equal to maximum height h. So angular momentum is r perpendicular into p. R perpendicular is h. P is equal to m into v, और v is u cos theta. ठीक है. मैक्सिमम हाइट क्या होती है प्रोजेक्टाइल में? u square sin square theta u upon square 2g. sin square theta upon 2g. That you can put it. This will be the answer. All right.
तो इसमें R perpendicular works very well in these type of situations. ठीक है. Now other formula similar to the torque, we have the second formula for angular momentum also, which can be derived as we did for the torque. So suppose there is a rigid body rotating about the axis with the constant angular speed omega. उसके 2-3 पार्टिकल ले लिए, m1 लिया, उसका एंगुलर मोमेंटम लिखा, m1 का क्या आएगा, rp sin 90. देखो ये छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, है ना. तो 90 डिग्री रहेगा, ये r के साथ sin 90 रहेगा. तो mvr वाला आई मीन r और p की वैल्यू mv sin θ1 हो जाएगा, और v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है. तो इट विल बी m1 r1 स्क्वायर एंड ओमेगा. सेकेंड पार्टिकल का क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा. थर्ड पार्टिकल का m3 r3 स्क्वायर ओमेगा. सबको ऐड कर दो, एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऑल आर इन सेम डायरेक्शन. ऐड कर दिया, ओमेगा बाहर निकाल दिया. We will be left with m1 r1 square plus m2 r2 square and so on. That is nothing but a moment of inertia, है ना. तो ये आंसर आ गया तुम्हारा, ये डेरिवेशन आ गया. क्लियर. तो ये उसकी लाइंस पर है, लीनियर मोमेंटम की लाइन. लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, m का काउंटर पार्ट i हो गया और v का काउंटर पार्ट ओमेगा हो गया, p का काउंटर पार्ट l हो गया. जो ट्रांसलेशन मोशन में फार्मूले हैं उनकी लाइंस पर हमें दूसरे फार्मूले रोटेशनल मोशन में मिलते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते तो एंगुलर मोमेंटम मिलता. एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशंस होता है, एंगुलर मोमेंटम के जो डायमेंशंस होते वो प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होते. पता है, हैव यू हर्ड द नेम प्लैंक कांस्टेंट? हाँ सर, कहाँ पे पढ़ा है? केमिस्ट्री में. तो उसके इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशंस आएंगी, दे विल बी इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस. हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी हम डिस्कस करते हैं ये पॉइंट. ठीक है. तो नाउ we can do this question based on this formula. Find angular momentum of hollow sphere of mass m and radius r rotating about diameter with the constant angular speed omega. बोलो इसको कितना आएगा? Just solve it and do it. ओमेगा दिया है, हॉलो स्फीयर का आई लिखना है बस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर कितना होता है? 2/3 mr स्क्वायर और उसके साथ ओमेगा आएगा 2/3 m ओमेगा r स्क्वायर. 2/3 होता है. L will be I into omega. हाँ, mr स्क्वायर. सिंपल. वैल्यूज दिए होंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे. यूनिट क्या होगी इसकी? R क्रॉस P था ना, R का क्या था? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही कुछ था शायद. R क्रॉस मीटर P है ना, तो R MVR है ना, MVR. M का kg और V का मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर हो जाएगा. एनसीईआरटी बुक में जूल सेकंड लिखा हुआ है ना. प्लैंक कांस्टेंट का एक्चुअली जूल सेकंड आता है, तो जूल सेकंड भी हो सकता है. पता
इसको जूल सेकंड में भी हम लिख सकते हैं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। चलो एक रिलेशन बनाते हैं, जैसे जैसे हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बनाया था वैसे यहाँ बनाते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन, उससे उससे यूनिट ये पता लगेगी। बिटवीन एंगुलर मोमेंटम and rotational kinetic energy. तो अगर तुम्हें वो रिलेशन याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना। रोटेशन में एम का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। है ना। तो अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग? आई से ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे भी मल्टीप्लाई, बैलेंस है। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे 2i हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा के रोटेशनल विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i। वो याद है तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का क्या आया था? के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो पी स्क्वायर का इक्विवेलेंट के एल हो गया, 2 का 2 और m का i हो गया। जितने फार्मूले वहां पढ़े हैं सबका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट यहाँ पर है, ठीक है। ये काम आ सकता है तुम्हें कहीं आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाओगे? इसको पूरा सॉल्व करो, वैल्यू दीजिए दी हुई है, जस्ट सॉल्व इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। मास दिया है और ओमेगा दिया हुआ है ना, और आर दिया हुआ है। आय कितना होगा इसका? सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? कौन सा एक्सिस दिया है? अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब वो अपनी खुद की एक्सिस से ऐसा रोटेट कर। इस एक्सिस से रोटेट कर रहा है तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डिस्क जैसा होता है कि नहीं होता सॉलिड सिलेंडर का? इट इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्क व्हिच इज हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है। और बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। इससे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ओमेगा दिया है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी दे देते, फ्रीक्वेंसी दी होगी तो ओमेगा कैसे निकालेंगे? 2 पाई एफ, है ना। ठीक है, तो इसके आंसर दिए हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी का 3125 आएगा, इसका जो वैल्यू पुट कर देंगे, और इसका आएगा
62.5 joule second. You can complete this after putting the values. All right. Now, relation between torque and angular momentum है ना. तो अभी हमने एंगुलर मोमेंटम का कल फार्मूला सीखा था, ये वाला. इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म. प्रोडक्ट वाला फार्मूला याद है? प्रोडक्ट में एक एक करके डिफरेंशिएट करते, पहले एक को करते, दूसरे को एज इट इज रखते, प्लस दूसरे को करते, फिर है ना ऐसा. तो dr by dt विल बी वेलोसिटी, और एंगुलर लीनियर मोमेंटम में भी वेलोसिटी आती है. तो v क्रॉस v कितना हो जाएगा बोलो? v क्रॉस v, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v विद v विल बी व्हाट? मास कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा मास. तो ये हो जाएगा v साइन 0, साइन 0 0 हो जाएगा. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी विल बी 0 बिकॉज उनके बीच का एंगल 0 हो जाए. क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है. ऑलराइट, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया. और dp by dt is called force, rate of change of linear momentum is called force. तो r क्रॉस f, और r क्रॉस f को क्या लिख सकते हैं? टॉर्क लिख सकते हैं. तो rate of change of angular momentum is equal to torque. It is again similar to that rate of change of linear momentum जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है. तो फोर्स का काउंटर पार्ट टॉर्क है. तो फिर से न्यूटन सेकंड लॉ वाला जैसा रिलेशन मिला हमें. टॉर्क इज द टी टाउ एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल टॉर्क. तो ये एक यूजफुल रिलेशन है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में. ठीक है यहां तक? आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर है. तो ये देखो, ये रिलेशन हमें एक यूजफुल रिलेशन है. जैसा कि हमने ट्रांसलेशन मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सीखा था, यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सीखने जा रहे हैं, विच इज वेरी यूजफुल. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? अगर एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो ये कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 होता है. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है देन उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है. सिंपल लॉजिक. एक्सटर्नल मोमेंटम मत लगाओ तो उसका एंगुलर मोमेंटम जितना है उतना ही रहने वाला है. मतलब एक्सटर्नल टॉर्क उसका जो है एंगुलर मोमेंटम चेंज करता है. तो नो एक्सटर्नल टॉर्क, नो चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, दैट्स ऑल. कैसे प्रूव करेंगे? ऊपर वाला रिलेशन ले लो. सिंस वी नो दिस, if no external torque then it is equal to 0, then dl by dt is 0. और 0 डिफरेंशिएशन 0 जब कब आता है? जब क्वांटिटी कांस्टेंट होती है. इसका मतलब l कांस्टेंट है. सिंस l is equal to I omega, therefore I omega is equal to constant, और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ओमेगा घट जाता है एंड वाइस वर्सा. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा. इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. न्यूमेरिकल्स के लिए ये फार्मूले को हम ऐसे करेंगे. I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज this person is holding the weight in his hands and sitting on the rotating chair. ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा 1 से घूम रही है. ठीक है, अभी उसने वेट को पास में लिया है. इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो ओमेगा बढ़ जाएगा.
तो ये चेयर बहुत फास्ट घूमने लगेगी, इट विल टर्न फास्ट. So that's what is the student has relatively large rotational inertia about the rotation axis and relatively small angular speed. Speed इसकी कम रहेगी. Second case में by decreasing his rotational inertia, the student automatically increases his angular speed. The angular momentum of the rotational system remains unchanged. Angular momentum unchanged है, कोई उसको पुश नहीं कर रहा, कोई टॉर्क नहीं लगा रहा उसके ऊपर, उसको घुमा के छोड़ दिया गया है ना. और समझते हैं आइडियल कंडीशन है, फ्रिक्शन बहुत कम है तो घूमता रहेगा, बट जब वो हाथ अंदर या बाहर करेगा तो एंगुलर स्पीड इसकी चेंज होती है. बिकॉज if one thing goes up, other things comes down, such that angular momentum remains constant. All right. और उसके बाकी एग्जांपल भी एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हो, जैसे बैले डांसर्स होते हैं, उनको जब बहुत फास्ट स्विंग करना होता है तो हाथ पैर बहुत पास में ले आते हैं वो. जब उनको रुकना होता है तो हाथ और पैर एक्सटेंड कर लेते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है ना. या फिर जो डाइवर्स होते हैं, ऊपर से जब जंप करते पानी में तो हाथ पैर पास में ले आते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इनर्शिया कम हो जाता है, तो ज्यादा टर्न कर लेते, समरसॉल्ट कर लेते, एंड देन दे एंटर इनटू द वाटर. तो मोमेंटम इनर्शिया कम करने से टर्निंग फास्ट हो जाती है, जैसे ये क्वेश्चन है. चलो पहले ये कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक. Go through this question. It is based on the law of conservation of angular momentum. टर्न टेबल पे है वो और हाथ उसके बाहर है. टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवॉल्यूशन. फ्रीक्वेंसी के टर्म में है तो हम चेंज नहीं करेंगे, राइट साइड में भी वही सिंबल आ जाएंगे, जैसे I1 ओमेगा 1, तो I1 F1 कर लेंगे इसको, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और स्पीड कितनी है उसकी 40 है. बाद में उसने क्या किया, बाद में क्या किया उसने, how much is the angular speed of the child if he folds his hands and reduces the moment of inertia 2/5 times of initial value. हंड्रेड रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाएगा. आंसर पर रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया है तो पर मिनट में लगेगा. अरे दिया तुम लोग हो, सुन रहे हो? तो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन Yes, sir. बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, तो ये क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में, शो दैट child's new kinetic energy of rotation is more than the initial value. तो इससे निकाल लो, ओमेगा निकाल लो, इनिशियल निकाल लो हाफ I1 ओमेगा 1, इसको हाफ I ले लो, फाइनल निकाल लो हाफ I2 ले लो, ये I1 है, I1 को I ले लो, I2 को 2/5 टाइम्स हाफ I ले लेना. तो बोल रहे फाइनल ज्यादा है ना, तो डिफरेंस निकाल लो. अच्छा डिफरेंस निकाल लो इनिशियल फाइनल का, माइनस आ गया तो इसका मतलब फाइनल ज्यादा है.
शो दैट क्या है, न्यू काइनेटिक एनर्जी, न्यू मतलब बाद वाली, मोर देन द इनिशियल वन है ना, तो वो निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, एंड अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कहाँ से बढ़ गई, हाउ कम दिस हैज गॉन अप, बिकॉज नोबडी इज अप्लाइंग द टॉर्क, बट हाउ कम इट हैज गॉन अप, तो उसने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज की, अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज किया, तो आंसर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द चाइल्ड। क्लियर, तो ये यूज इज इंटरनल एनर्जी, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, इंटरनल एनर्जी यूज करते हैं, फैट बर्न होता है उसमें, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। It is also based on law of conservation of angular momentum. Initial angular momentum, इनिशियली क्या था, इट वाज सर्कुलर डिस्क ऑफ मास है, तो इनिशियल उसका मोमेंट, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, और बाद में क्या किया, टू स्मॉल स्फीयर्स ऑफ मास m are attached gently to the diametrically opposite points on the edge of the disk, है ना, जैसे ये डिस्क ऐसे रोटेट हो रही, ठीक है। तो इसमें क्या किया, यहाँ पे दो छोटे छोटे स्फीयर्स लगा दिए जेंटली ऑन द अपोजिट साइड, तभी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बोलो, ओमेगा 2 निकालना है, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखें, तो डिस्क का तो रहेगा ये एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, जो छोटे स्फीयर लगाए उनका कितना होगा, वो पॉइंट मास जैसे हैं, दो लगाया तो 2 इंटू एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास का क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर सब चला जाएगा इधर से, और 2 भी यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो ये नीचे ले आएंगे m ओमेगा 1 अपॉन m प्लस 4m विल बी ओमेगा 2, तो सी ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर और नॉट, Yes, sir. फाइनल हाँ मोमेंट सर, ऑफ इनर्शिया डिस्क का और दोनों पॉइंट मासेस का ऐड हो जाएगा, अगर दोनों पॉइंट मासेस अपोजिट एक साथ रखते तब क्या होगा बोलो, दोनों को एक साथ रखा तब, तभी भी सेम आंसर होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट रखने का कोई लॉजिक नहीं है, एक साथ भी रख सकते हैं, बट बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए उसका, मतलब कहीं भी रखो सर्कमफ्रेंस पे, नॉट ओनली डायमेट्रिकली बट टुगेदर भी रख सकते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट भी, एक एक यहाँ पे रख के एक यहाँ पे रख सकते हैं, है ना, ऐसा भी रख सकते हैं, सपोज एक को यहाँ पे रखा, एक को सर्कमफ्रेंस में, एक को मिडवे पर रखा था, तब उसका मोमेंट, तब डिस्टेंस उसका r/2 लेना पड़ेगा फिर, अगर मिडवे पे रखा कहीं पर, है ना, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर अलग अलग हो जाएगा,
व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन करके देन विल स्टार्ट द ग्रेविटेशन. देखो ये क्वेश्चन ये है, इफ radius of the earth is reduced to half of its previous value, if radius of the earth is reduced to half of its initial value, but mass remaining same, find new duration of day. Find new duration of the day. Day means full day, not that. बोलो कितना होगा? अगर अर्थ का रेडियस आधा हो जाए, मास सेम रहे, तो दिन कितना बड़ा होगा, कितने घंटे का होगा? How many hours the day will be? तो I1 ओमेगा 1, तो I1 कितना लिखें बोलो? अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 मास को. देखो अगर हमें याद नहीं आता ना, यहाँ पे 2/5 होगा, दोनों तरफ होगा, जो भी होगा, है ना, वो कैंसिल ही हो जाएगा, mr Cancel स्क्वायर हो मिल जाएगा. जाएगा. ओमेगा क्या होता है? 2π/t, 2π/t1 लिखेंगे. ये 2/5 m, रेडियस कितनी हो गई थी? आधी. और ये 2π/t2, t2 निकलना है हमें. तो ये क्या बच जाएगा? ये सब कैंसिल होने के बाद t2 विल बी t1 बाई, ये कैंसिल हो गया, देखो, बाई 4 आ जाएगा. t1 इज 24 आवर्स, 6 hours. 6, तो 6 आवर्स का दिन हो जाएगा ना. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं, ये चैप्टर को. इसमें रोलिंग मोशन वगैरह नहीं है, तो बाद में मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, नहीं तो बाद में जो अभी टॉपिक नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं, बाद में उसको कंप्लीट कर सकते हैं. पहले को कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जो टॉपिक डिलीट हुए वी कैन डू इट लेटर ऑन, और आई विल रिकॉर्ड इट एंड पुट इट इनटू द यूट्यूब. गॉट इट? तो अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रेविटेशन चैप्टर. इनफैक्ट ये भी नहीं है जो मैंने अभी कराया है ना, ये भी, ये एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क डिलीट हो गया है, बट ये हमें आगे लगते हैं, आगे चैप्टर्स में जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए हम लोगों ने ये कर लिया यहाँ पर. ऑलराइट, चलो Yes, sir. फिर Yes, sir. ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद. जस्ट विल हैव द ब्रेक नाउ. ब्रेक मतलब ज्वाइन आफ्टर 2-3 minutes.